probably fibroid uterus and male factor. Any other differential? Ma'am, mass may be ovarian. There may be ovarian mass. Benign or malignant? Secondary subfertility में male factor fibroid के अलावा और क्या हो सकता है? Any other differential? For secondary subfertility. For this patient. मैम 28 वीक साइज का मुझे डिफरेंशियल नहीं बनाने आ रहा इतने बड़े मैस का। हो सकते हैं कोई गट के इतने बड़े बड़े रिटोपेरिटोनियल। What are causes? What can be causes of her subfertility? Subfertility, there may be the cause of male factor and this huge size mass, fibroid uterus, which may distort endometrial cavity and elongation of the fallopian tubes, and its anatomy may be distorted due to large size fibroid and corneal and blockage. Okay, now what is your first differential, second differential, and third differential? My first differential is fibroid uterus. Okay. Her age is between the 20 to 40 year, and on history there is a slowly growing mass. No history of weight loss, anorexia, or any malignancy symptoms. Or mass on examination is in large, central, firm, irregular margins, firm inconsistency, and mobile. Okay. My second differential is ovarian. Tumor may be benign, most probably benign. ऐसा नहीं है लेकिन लार्ज मैस है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं है, नो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। And what is your third differential? Third differential, ma'am, any GIT tumor. Dr. Saima Rashid. Retroperitoneal. साइमा डिफरेंशियल्स बता दो मरीज के। हाँ जी डॉक्टर शाजिया। हेलो हेलो। How will you describe differentials of this patient? इसकी ना मुझे एलएमपी नहीं पता, हो सकता है इसको प्रेगनेंसी भी फिर डाल सकते हैं हम। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है और एलएमपी जो है इसकी 10 डेज बिफोर है। 10 डेज फिर तो वो प्रेगनेंसी नहीं आएगा, फिर फाइब्रोइड आएगा, ओवेरियन मैस आ सकता है इसका, या इसको जो है ना वो यही है डॉक्टर शाजिया, और क्या बनेंगे? Most probable first differential on the basis of history examination and available investigations is secondary subfertility with male factor, and second differential can be secondary subfertility due to tumor factor along with fibroid uterus. As you are not, आपके पास एक obvious cause मिल गया subfertility का along with fibroid. And second पहले गएंगे ट्यूबर फैक्टर along with fibroid. Fibroid को आप सबफर्टिलिटी का कॉज तब बनाते हैं जब वो सारे और कॉजेज एक्सक्लूड हो जाए. Fibroid may or may not be the cause of subfertility in your patient. Okay, how will you manage that? ठीक है मैम। जब पेशेंट के दो प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप अपने डिफरेंशियल में दोनों को साथ साथ बनाते हैं. अगर आप उसे सबफर्टिलिटी को उसके डिफरेंशियल्स में इंक्लूड नहीं करते तो इसका मतलब है यू आर नॉट कंसीडरिंग हर प्राइमरी प्रॉब्लम. व्हाट इज प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ योर पेशेंट, सबफर्टिलिटी और मैस? बहुत सबफर्टिलिटी ज्यादा है मैम.
वो मैथ्स के लिए तो फिर 4 साल से ऐसे ही थी. Include secondary subfertility along with other pathologies and along with cause of subfertility and associated pathology. That can be cause of subfertility or that can be incidental or coexistent finding. Okay, how will you manage it? ठीक है मैम. First of all, I need ultrasound to manage my patient. What do you need on ultrasound? On ultrasound, I want to see uterine size, mass origin, or bimetal pathology, endometrial pathology, its regularity and focal lesion, or adenaxal pathology. Uterus is 28 centimeter with multiple uterine fibroids, larger one measuring 8 into 10 centimeter in fundal region. Bilateral necks are normal. Cavity is not distorted. Any bimetal fibroid का मैम subserosal है या intramural है? Multiple fibroids intramural. Okay. Or endometrial cavity distorted or not? Yeah. No. Yes. Okay. Any adenaxal pathology? No. Ma'am, I want to see ureter, kidney, and bladder also. Normal. Okay. Then I will consult my patient regarding her disease, as she has a fibroid uterus and it is a benign in nature, and most probably cause of her fertility is not only fibroid, maybe the male factor and other causes which will be evaluated after admission. What do you mean by maybe male factor? What is your interpretation of husband semen analysis? Decreased motility, progressive motility कम है, और then I want to I will complete my remaining investigations. I will do husband FSH. Motility can be cause of subfertility or not? Yes. Then why you are in doubt? It is a cause of subfertility. Cause of subfertility is male factor or not? Yes, ma'am. I will counsel her that the cause of her subfertility is most probably male factor and is male factor, and only, and maybe this big huge size mass fibroid, and other cause we will be evaluated after admission. And treatment of her fibroid is myomectomy. After myomectomy, 30 to 50% chance of recurrence and 15% chance of hemorrhage and 1% chance of hysterectomy during this procedure, and chance of pregnancy after myomectomy is 40 to 60%, and real laparoscopy 20 to 25% in future life. I will involve a multidisciplinary team in the form of reproductive medicine specialist for husband evaluation and urologist. After doing her FSH and मैम मुझे मांगने चाहिए थे FSH और testosterone जो मैंने husband के नहीं मांगे. Not available. Okay, then I will फिर मैम इसको यूरोलॉजिस्ट के पास भेजूं या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास? हम तो यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं. And for proper evaluation and general physical examination of her husband and treatment, and then I will. Urologists are usually the specialists who are initially responsible for assessing the male when male infertility is suspected. However, subfertility is a multifactorial condition requiring multidisciplinary involvement, और इसकी MDT में आता है urologist, endocrinologist, and gynecologist with special training in andrology and experience in diagnosis and treatment of male subfertility. ठीक है. Initially, you will refer him to urologist. Okay. Then I will advise. I will do hysterosalpingography of her before going to further procedure,
मैम मायोमेक्टमी से पहले HSG करा लेंगे ट्यूबल फैक्टर देखने के लिए एज शी हैज सेकेंडरी सबफर्टिलिटी. Why you need HSC? If you are planning her myomectomy, can't you do dye test during myomectomy? How Because I will plan to arrange GnRH from Zakat Fund in our hospital and give Zoladex 3.6 milligram subcut between for every 28 days for 3 times. Or meanwhile, I want to see her tubal status. myomectomy Yes, देखने ma'am. के लिए आपने 3 महीने लगा देने हैं ट्यूबल स्टेटस देखने के मैम लिए. GnRH देकर उसको श्रिंक करूंगी. मीनवाइल मैंने अभी उसका HSG कर लेना है, ट्यूबल स्टेटस देख लेना है. ओके. ताकि मुझे ट्यूबल स्टेटस भी पता चल जाए. और बाद में फिर can't you do dye test during myomectomy? I will do dye test also during myomectomy. For confirmation of tubal patency in your patient, and for but as you are planning her surgery, then you can do dye test during myomectomy. As if tubes are blocked on HSG, even then you will reconfirm during myomectomy as sensitivity of HSG is only 60%. yes ma'am. ठीक है. अच्छा मैम ये क्वेश्चंस ना बहुत सारे कैंडिडेट्स से पूछा है. ये HSG वाला मायोमेक्टमी से पहले आप करेंगे या नहीं करेंगे. तो फिर हमने तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट से पूछ के यही किया कि हम कर लें, क्योंकि एग्जामिनर यही चाह रहा था कि उससे पहले भी HSG करें और बाद में 3 महीने के बाद भी HSG करें. तो करना चाहिए मैम. देखो ये जो प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी मायोमेक्टमी है, इसका कोई आपके पास रेफरेंस नहीं है. सही है मैम. और मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि उसको प्रूव के लिए कि भाई हमारी सर्जरी से कुछ नहीं है ना. अगर सपोज आज आप HSG करवा भी लेते हो इस पेशेंट की और आपकी बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज आता है, will you take it as bilateral tubal blockage or will you confirm it any other way? As you are planning her surgery in either way, then why can't you do her dye test during myomectomy? What will be additional benefit during myomectomy? There is a 2 benefits before surgery. There is a 2 benefits of dye test before surgery. HSG के benefits बताऊं और dye test के myomectomy के दौरान. If you have HSG pre-surgery. Ma'am, due to ethical issues, I will do HSG before myomectomy. Ma'am, I will do HSG before myomectomy for ethical reason, as my patient know before my surgery as her tubes are patent or not, and I will reconfirm it during myomectomy for her patency of tubes with dye test and dye inlined the myometrium and endometrium. When I will do myomectomy, there is if there is a breakage of cavity, then it will stain blue. Then I will stitch them as peroperatively. मैम peroperatively ये लाइन कर देता है, स्टेन कर देता है, तो फिर हमें पता चल जाता है कैविटी ब्रीच हुई है, हम उसको भी स्टिच कर सकते हैं. If pre-surgery HSG was normal and during myomectomy tubes were patent, and if post myomectomy HSG tubes are blocked, then who is responsible for that? And you have proved that you are the culprit for tubal block. I will counsel my patient. There is a evidences for her. I will counsel my patient. मैम आवाज कट गई है. Hello, ma'am, does that repeat कर दें? That her tubes were patent pre-surgery and during surgery and post-surgery her tubes are blocked. Then what will be fertility options for her and how will you justify this? As due to surgery, adhesions and any complication, tubes can be damaged. Ma'am, I will preoperatively I will counsel my patient that my this is the complication of surgery, as there may be adhesion formations. Why can't you counsel her without HSG?
मैम समझ नहीं आई, रिपीट कर दें। वाई कि HSG ना कराएं? Confirming patency of tubes, we will consult them about the possibility of tubal blockage post surgery. Why can't you consult them without evidence of confirmation of patency of tubes? And what is possibility of tubal blockage due to myomectomy? नहीं पता, पॉसिबिलिटी का नहीं पता कितनी है। हाँ, जितनी पुअर हैंडलिंग होगी और ब्लीडिंग। हाँ, क्या 50% जी डॉक्टर हीरा, फिर तो ये पक्का कोर्ट जाने वाला काम है कि तुम्हारी ट्यूब्स पहले भी ठीक थी, ऑपरेशन के दौरान भी ठीक थी, और मैंने इतनी सर्जरी की है कि अब बायलैटरल ट्यूबर ब्लॉकेज आ गया, अब जाके IVF करा लो। तो उसने कहना डॉक्टर साहब पहले मुझे आप 5 लाख दे दें, आपकी बहुत मेहरबानी। यस मैम। तो फिर मैम इसको फिर क्या करें, सिर्फ काउंसिल कर दें, ना कराएं HSG पहले? देखो कोई बेनिफिट नहीं है ना, देखो आपकी। यस मैम, आपकी सिर्फ और महंगा भी है, 6-7 हजार का है। इस पे मैं मुझे मैम बहुत कंफ्यूजन थी। नहीं, अब आप बताओ कि आप जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं मैम, इस तरह तो जस्टिफाई नहीं कर सकती कि पहले सारी ट्यूब सही थी और अब पोस्ट 3 मंथ के बाद अब HSG खराब आ गया है। देखो आपकी सिर्फ काउंसलिंग पे इफेक्ट होगा ना, आप पेशेंट को सिंपली काउंसल करो। ड्यूरिंग सर्जरी आई विल डू ट्यूबल पेटेंसी, if bilateral tubes will be patent I will do nothing, and if tubes are blocked due to any reason, are you willing or affording for IVF or do you want tubal surgery? अगर वो IVF के लिए willing है, ट्यूब्स ब्लॉक्ड आ जाती हैं, you will do nothing, मायोमेक्टमी करो और पेशेंट को रेफर कर दो टू फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आ जाता है, a patient is not willing or affording for IVF, you can assess tubes for tubal surgery. सही है मैम। मैम ट्यूबल सर्जरी हम तो नहीं करते, फिर हम फिर उसको रेफर करेंगे? अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर आप उसे नहीं ओपन करोगे। जो बंदा मायोमेक्टमी कर लेता है वो ट्यूबल सर्जरी भी कर लेता है। तो फिर हम ओपन ही नहीं करेंगे, उसको ऐसे सेंटर में भेजेंगे जहाँ ये ट्यूबल सर्जरीज भी हो रही हैं। अवेलेबल है। देखो आपके पेशेंट में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो मैम हम ट्यूबर ब्लॉकेज का। सही है, ठीक है मैम। डिस्चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं था उसको, और एग्जामिनेशन पे भी नहीं था, हिस्ट्री पे भी नहीं था। ठीक है मैम, ये बात तो मैम क्लियर हो गई है। तो देखो जब मैम और GnRH का बताएं। 28 हफ्ते की यूट्रस पे आपने इतने ज्यादा फाइब्राइड्स निकालने हैं, ट्यूब्स भी एनाटॉमिकली एबनॉर्मल पोजीशन पे होंगी ना, एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी ट्यूब किसी तरह डैमेज भी हो जाए। सही है, अच्छी वाली काउंसलिंग करनी है इससे पहले। अगर आप लोग ये कहते हो कि जी अगर ऑपरेशन के बाद ट्यूब्स हो गई ब्लॉक्ड या पहले ही उसकी ब्लॉक्ड हुई तो वो मुझ पे ये इल्जाम ना लगाए कि ये डॉक्टर ने ब्लॉक कर दी है। तो ये भी तो एक एक्सपेक्ट है ना, पहले उसकी पेटेंट हो और बाद में ब्लॉक्ड आ जाए। तो फिर आपने तो पहले ही एविडेंस दे दिया कि ये मेरी तरफ से ही हुआ है, पहले तो पेटेंट थी। और फिर एक्स्ट्रा इंटरवेंशन का कोई एडिशनल बेनिफिट भी नहीं है ना। HSG की कीमत कितनी है? यस मैम, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। 6000 थी मेरे ख्याल में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे। अब 11000। मैंने एक पेशेंट भेजना था HSG के लिए, उसके पास 11000। डॉक्टर शादी इसका HMP क्यों नहीं है? इसका इतना बड़ा मैच है जी। क्या हुआ डॉक्टर शादी, इसको HMP क्यों नहीं है? इसका 28 हफ्ते का यूट्रस है
मल्टीपल फाइब्राइड है लेकिन इसको एचएम भी नहीं है। मल्टीपल तो मैंने बना दिया, हो सकता है ना उसका सिंगल सबसिरोजल फाइब्राइड हो। 50% सबसिरोजल थे, सिम्प्टोमेटिक। सबसिरोजल थे मैम। हाँ ये तो मैंने कर दिया ये ना। बता रही है इनको फाइब्राइड थे, वैसे भी अल्ट्रासाउंड नहीं नहीं मैम एक बड़ा सारा फाइब्राइड था फंडल रीजन पे सबसिरोजल, 50% और फाइब्राइड एक साइड पे था वो भी सबसिरोजल ही था। ठीक है ठीक है ठीक है। और डॉक्टर शाजिया, वो जो कल आप कह रही थी कि जो डायबिटीज में 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन 10 यूनिट ऑफ शुगर को कम करेगा। हेलो, हाँ वो अब देखिए वो जो नेत्री माला वहाँ पे लिखा है मैम ये जो GnRH, अच्छा नहीं मैम ये जो GnRH वाली ऑप्शन है ये दे सकते हैं इसको, क्योंकि इस हॉस्पिटल में ज़कात फंड से पेशेंट्स पे 3 मंथ के लिए दे रहे हैं उसको ज़ोलाडेक्स 3.6 मिलीग्राम। तो आपने ऑफर जरूर करना ठीक है। इफ शी इज अफोर्डिंग शी कैन गो फॉर, और इफ यू कैन अरेंज, इफ शी इज नॉट अफोर्डिंग और इफ शी डिनाइज इट्स हर चॉइस, बट आपने उसे जरूर ऑफर करना है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हिस्टेक्टमी। डॉक्टर शाजिया, अगर देखिए पेशेंट का है मेल फैक्टर है, हम उसको भेज रहे हैं वहाँ पे एवेल्युएशन के लिए, ठीक है, मीनवाइल हम ज़ोलाडेक्स लगा रहे हैं, तो साथ अगर हम स्टेरॉइड की पेशेंट कर लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि साथ में उसकी कैविटी डिसऑर्डेड नहीं है, और साथ में पेशेंट की हम अच्छी सी काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई बाद में ये रिस्क हो सकता है कि एडिशंस की वजह से बाद में भी ब्लॉकेज आ सकती है, तो मीनवाइल हम कर नहीं सकते ये सारा वर्कअप कंप्लीट उसका? समझ नहीं आया मुझे। तो जिस ज़कात फंड से अगर ज़ोलाडेक्स अरेंज कर रहे हैं तो उस ज़कात फंड से हम स्टेरॉइड नहीं करा सकते? बस ज़कात मतलब ये अगर इस पेशेंट कहती है कि भी मैं ज़ोलाडेक्स लगवा रही हूँ, जिस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है वो आपने ज़कात के पैसे जाया करके वैसे ही आप मुजरिम हो। What will be additional benefit of having ज़ोलाडेक्स ना लगाया उसको? आपके पास एक जस्टिफिकेशन है प्री सर्जरी HSG करने की, या आपकी मैनेजमेंट चेंज हो रही है? नहीं, ये आज आप है। लोग बैठ के ढूंढेंगे, ये सबकी असाइनमेंट है जितने 10 लोग हैं। हाउ प्री सर्जरी योर मैनेजमेंट। मैंने ना हमारे पास शाजिया मैंने एविडेंस आ गया तो हम इस बात पे एग्री कर लेंगे कि जी हम करवाएंगे। शाजिया मैंने ना एक पेशेंट देखी थी, वो 40 इयर्स ओल्ड थी, सेकंड मैरिज थी, सब फर्टिलिटी थी और साथ उसको ना फाइब्रॉइड था। तो मैंने मतलब जो अपना केस देख के अपने सीनियर से डिस्कस किया था ना, मैंने यही प्लान किया था कि उसकी मायोमेक्टमी के तो वो एक सेकंड शाजिया आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हेलो, आ रही है। तो शाजिया वो पेशेंट थी 40 इयर्स ओल्ड, सेकेंड मैरिज थी उसकी, सब फर्टिलिटी थी और उसका ना फाइब्रॉइड था साथ ना, उसको 4x6 सेंटीमीटर का ना तो उसका ना मैंने तब डिस्कस किया था अपने सीनियर से, और मैं ये कह रही थी कि मैं मायोमेक्टमी एट द टाइम ऑफ मायोमेक्टमी उसका ना करूंगी, उसकी ट्यूबल स्टेटस चेक करूंगी। तो वो भी तब यही कह रही थी कि नहीं पहले भी करोगी और मायोमेक्टमी के टाइम पे भी और बाद में भी। तो मैंने उनसे भी रीजन पूछा था कि पहले मतलब मैं ये हमारे तो वैसे हॉस्पिटल में फ्री होता है HSG, लेकिन वो मतलब मैंने उनसे पूछा था कि पेनफुल है कैथेटर उसको डाल के ये जब मैं उस टाइम कर सकती हूँ। तो जो अब आपने बात कही है ना, उन्होंने इसका मतलब थोड़ा सा रोटेट करके उन्होंने कहा था कि अगर उसकी वैसी ट्यूबल ब्लॉकेड हुई तो 40 इयर्स है और इतने साल से सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज में भी उसने कंसीव नहीं किया, तो वैसे ट्यूबल ब्लॉक हुई तो तुम पहले उसको काउंसिल कर सकती हो। और ये अगर वो उसके फाइब्राइड है, फाइब्राइड की बड़े वजह डिफरेंट से ओपिनियन है लोगों के मैम इस चीज में। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आप हेलो जी जी कौन बोल रहा था? मैं बोली थी, आप बता रही थी, आपकी ना आवाज कट गई। मैं ये कह रही हूँ मैम और एंडोमेट्रोसिस, अगर बड़े बड़े मैम अगर एंडोमेट्रोमा है और वो भी सब फर्टिलिटी के केस में, अगर हम एंडोमेट्रोमा के लिए सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें भी डाई टेस्ट हम उसी वक्त करेंगे, पर ऑपरेटिवली करेंगे और पहले काउंसलिंग कर देंगे कि डीएनसी इसकी वजह से हो सकती है, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें भी तो हम डायरेक्ट लैप एंड डाई करते हैं। हाँ वो तो करते ही नहीं है। और सर्जरी ना करनी हो तो
उसमें तो करना ही है, और बाद में फिर करना है, बाद में HSG करना है अगर हम जब ऑपरेटिवली कर लेते हैं, उसमें करना है एंड्रोमेट्रोमा में जब HSG सर्जरी के बाद। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एंडोमेट्रियोसिस में, तो वो हम कभी भी नहीं करेंगे। दैट विल एग्रीवेट प्रॉब्लम। यस मैम। अगर इसको हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी हम नहीं करते, और अगर PID है तो भी नहीं करते। चाहे हम उसकी सर्जरी करें, मैम एक और पोस्ट सर्जरी हम नहीं करेंगे, तो उसके लिए तो हमारे पास ऑप्शन ही एक है कि हमने सिर्फ ड्यूरिंग सर्जरी करना है। कोई सर्जरी प्लान नहीं की तो हमने लैप एंड डाई करना है। यस मैम। मैम एक और पेशेंट था, उसका भी 36 वीक साइज फाइब्राइड था, बहुत बड़ा पेशेंट, 45 ईयर ऑफ एज थी और 6 मंथ का एमिनोरिया था। अब 6 मंथ के एमिनोरिया पे अगर वो UPT हम मांगते हैं और वो नेगेटिव देती है, तो फिर हम उसमें, जैसे ये पेरीमेनोपाजल स्टेटस हो सकती है पेशेंट की, पहले कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं था, तो इसमें हम FSH मांगेंगे या बस रहने देंगे? 45 ईयर एज थी पेशेंट की। पेशेंट ही नहीं थी एमिनोरिया। पैरा 4, और उसको ना 6 मंथ का एमिनोरिया था, पहले उसको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ठीक था। अब वो एमिनोरिया में पेरीमेनोपाजल भी हो सकती है या मीनोपाजल भी हो सकती है 45 एज पे, तो मैं ये कह रही थी कि UPT अगर वो नेगेटिव देती है एग्जामिनर हमें, तो उसके बाद हम FSH कराएंगे या बस कह देंगे कि नहीं ये पेरीमेनोपाजल या मीनोपाजल? नहीं करवाएंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाना है, FSH भी करवाना है। ठीक है मैम। और मैम ये जो मेरा केस था इसमें मेल फैक्टर था और आपने मोर्टेलिटी कम बताई थी, तो उसके बाद ये जो FSH जो टेस्टोस्टेरोन थे ये मैंने कराने थे, और उसकी बेस पे बताना था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का है या ओवेरियन या टेस्टिकुलर फेलियर है, या जो वर्कअप करते हैं सब, यूरोलॉजिस्ट खुद करता है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैनेजर डॉक्टर शादिया, हम 35 ईयर से अबव जो पेशेंट आई थी हमारे पास सब फर्टिलिटी के साथ, जैसे मैंने वो 40 यार हीरा का केस मैनेज कर लो, ये रह जाना है। यस मैम, इसको मैनेज कर लेते हैं मैम। इसको हमने प्री ऑपरेटिवली जो है आई विल, अब मैं प्री ऑपरेटिवली बता दूं, आफ्टर एडमिशन आई विल arrange 3 to 4 unit of blood with 2 unit with donor availability, and then I will take anesthesia fitness and डॉक्टर हीरा 3 और 4? yes मैम। 3 करने हैं, 4 करने हैं? 4। तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए ये 3 मैम 4 होती है। मरीज को भी 2-3 नवाले खा लो, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मैम इतना बड़ा फाइब्राइड है तो 4 unit of blood, 4 unit of blood with donor availability, and then I will take anesthesia fitness and keep NPO after midnight, and or ticket will be provided, and double IV line will be maintained in the early morning, and cervical catheter number 6 will be passed for dye test. After induction of anesthesia, I will give IV antibiotics, and I will perform EUA to confirm my diagnosis and clean drape the patient, and I will give subumbilical vertical incision, subumbilical देंगे मैम, vertical incision 28 weeks पे, and will extend it afterward if necessary. दे दिए तो लो ट्रांसफर से मायोमेक्टमी नहीं होती, इसमें आपने कौन सा कोई स्टेजिंग करनी है? यस मैम। 40% भी साइज रिड्यूस हो तो प्रोबेबल है कि ये 20 वीक साइज हो जाए। Okay, I will give phenestrine incision if fibroid is reduced 40% after 3 months of GnRH treatment, and then I will exteriorize the uterus and will hold the myoma, and with myoma secrue a longitudinal incision over the most prominent part of the fibroid given. Fibroid is separated from the capsule from sharp and blunt dissection with finger, and I will try to remove all fibroids with single incision, and Bonnie's clamp will be applied over the isthmus part, and will release after every 20 to 30 minutes to prevent ischemia and anaphylactic reaction. And redundant skin will be removed, and dead spaces will be closed with interrupted sutures, and then I will stitch the serosal surface of the fibroid over the anterior surface of the uterus to prevent the adhesion formations, and
then I will close the abdomen in reverse order. Then I will shift the patient to the recovery room and will do vital record monitoring half hourly for first 4 hours and IOP record, and then 2 hourly after next 6 hours. And then on first post-op day, I will NPO will be braked after bowel sounds audible and early mobilization of the patients. And on second post-op day, I will resend her hemoglobin level. And if and dressing will change, if patient remains stable after third post-op day, then I will discharge her. On discharge slip, I will advise her for recurrence of the fibroid, and after 3 months, hysterosalpingography will be should be done, and after 4 to 6 months she should try to conceive after 4 to 6 months of the surgery. And if the cavity will be breached, I will mention on the discharge slip, and cesarean section will be done in the next pregnancy. I will recall her on 7th post-op day for stitch out, and I will give her antibiotics for 7 days. And after I will ask her to come again with histopathology भेजेंगे मैम इसकी histopathology report and male factor evaluation, and in consultation with urologist after 3 to 4 months. I will मैम CC देना है इसको, फिर accordingly manage करेंगे सब fertility को. अगर वो ओवुलेट कर रही है CC दे देंगे इसको मैम. क्लोमिफेन cited. Is ovulation normal or not? Yes ma'am. Your further management will be according to her tubal state. Ma'am, regular menstrual cycle. Husband semen analysis. भैया बस आप लोगों ने क्लोमिफेन साइटेट हर हाल में हर मरीज अब ऑब्वियस है कि मेल है और उस बेचारे की ओवुलेशन भी हो रही है, देन व्हाट इज फन ऑफ गिविंग हर ओवुलेशन इंजेक्शन? Yes ma'am. My further management depends upon the tubal status. Her fertility options will depend and on male factor tubal patency and her husband's semen analysis report. अगर वो इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है, तो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए वेट करेंगे, नहीं होती तो फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन. What is definition of mild, moderate or severe male factor disease? Mild male factor disease, there is a sperm count 10 to 15 million per ejaculate, and moderate less than 5 million, and severe less than 1 million. बस सिर्फ काउंट पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. less than 1 था मेरे पास. ओके, ये जो प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी एजेस की मैं आज बैठ के कहीं खुद सर्च करती हूँ कि इसका कोई एविडेंस है या नहीं है. इस पे अभी हमारा कोई कंसेंसस नहीं हुआ, बट आई थिंक कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है ना, आपकी इससे कोई मैनेजमेंट चेंज होती है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है. जी डॉक्टर आयशा. डॉक्टर आयशा आप कुछ पूछ रही थी? यस मैम. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया, एक क्वेश्चन पूछ लूं? डॉक्टर आयशा का सुन ले, फिर आपका भी सुनते हैं. ये फाइब्रॉइड से रिलेटेड ही है. ओके ओके बताएं. हाँ जी डॉक्टर शाजिया, मैं ये पूछ रही थी कि 35 इयर्स के बाद मेंस्ट्रुएशन आती है फॉर सबफर्टिलिटी, ठीक है, तो उसमें हमने AMH भी मांगना है ना पेशेंट की, मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं. FSH नॉर्मल रेंज में आ जाता है तो फिर हम AMH नहीं कराते. FSH रेज्ड आ गए, देन वी गो फॉर एंट्रल फॉलिकल काउंट और AMH. ठीक है, ठीक है. अच्छा डॉक्टर शाजिया, ये पेशेंट आ रही है विद रेगुलर साइकिल भी, तो भी हम FSH करवाएंगे? FSH तो इरेगुलर साइकिल में नहीं करवाते. आफ्टर 35 जो आते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं आफ्टर मैम ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. 30%
regular menstrual cycles can be an मैम ovulation. ये भी आपने जो क्वेश्चन पूछा माइल्ड मॉडरेट और सीवियर वाला, ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू शाजिया। अच्छा डॉक्टर शाजिया, एक पेशेंट थी 27 इयर्स की, 12 वीक साइज उसका यूट्रस था और सिर्फ इनफर्टिलिटी का रीजन यही था सबसिरोजल फाइब्राइड जो 5x5 सेंटीमीटर था और पीवी पे 12 वीक साइज यूट्रस था। तो इसकी जो इनफर्टिलिटी के कॉज में फिर हम यही कहेंगे ना कि प्रोबेबली जो है वो सबसिरोजल फाइब्राइड है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ट्यूब्स को। तो इस पेशेंट की एचएसजी करेंगे हम पहले ही, इसकी क्योंकि करेंगे ये एसिम्प्टोमेटिक है अदरवाइज। अगर सबसे पहले हाँ। आपने ट्यूबल स्टेटस चेक करना है। सबसिरोजल फाइब्राइड कैन नॉट बी द कॉज ऑफ सबफर्टिलिटी, और फाइब्राइड को हम कॉज ऑफ सबफर्टिलिटी लेबल ही तब करते हैं जब हम मेल फैक्टर एक्सक्लूड कर चुके हो, ओव्यूलेशन, यूट्राइन कैविटी एंड ट्यूबल स्टेटस। पहले आप इसका ट्यूबल स्टेटस चेक करें एंड 12 सेंटीमीटर तक का एसिम्प्टोमेटिक फाइब्राइड इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी भी एसिम्प्टोमेटिक फाइब्राइड की हम तब करते हैं जब मोर देन 12 वीक्स इसका साइज हो, साइज ऑफ यूट्रस हो। अच्छा डॉक्टर शाजिया, ये जो आपने एक क्वेश्चन पूछा माइल्ड मॉडरेट और सीवियर मेल फैक्टर, इसमें वो मेल फंक्शन टेस्ट तो नहीं आएंगे इसमें? वो मुश्किल से ना मैक्रोसोमल रिएक्शंस वगैरह, ऑस्मोटिक फ्रिजिडिटी, इसकी ये क्लासिफिकेशन क्या करते हैं मैंने ढूंढी थी, मुझे कहीं मिली नहीं। बस ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि माइल्ड मेल फैक्टर। मैम ये पूछते हैं ये भी एग्जामिनर, ये मिला नहीं था कहीं, ये मैं अभी बैठ के पढ़ी यस मैम, मुझे इस गाइडलाइन में मिल जाए। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर शाजिया, ड्यूएट्स में लिखा हुआ है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक भी हो फाइब्राइड और इनफर्टिलिटी हो, अगर वो 3 सेंटीमीटर। हेलो मैम, मैंने एक और क्वेश्चन पूछना है, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मोर देन 12? 12। अच्छा, साइज ऑफ यूट्रस 12 से कम हो या साइज ऑफ फाइब्राइड लेस देन